Hello students, today we will continue this lesson 1.3, The Wild Boar and the Fox. It's a story. We will continue with pointers today. Page number 8, question number 1. Listen to the story carefully. As you listen, tick only those words that appear in the story. बच्चों यहाँ पर कुछ राइमिंग वर्ड्स टाइप वर्ड्स दिए गए हैं जिनका साउंड सेम है, जैसे वाइल्ड माइल्ड, ओर वोर, ऑक्स बॉक्स फॉक्स, डार्क बाक, गन फन, सॉ रॉ, प्लीज टीज, टॉक वॉक, प्रे डे, वर्ड वर्क, हार्ड कार्ड, won't want, and chance dance. Now I will read the story. You write these words in your notebook. मैं कहानी को पढ़ती हूँ और जब दोनों में से कोई एक वर्ड, जैसे वाइल्ड और माइल्ड है, इसमें से कोई एक वर्ड जब आपको सुनाई देता है स्टोरी में, तुरंत उस वर्ड को टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार अन्य वर्ड्स को भी। द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। वन डे a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He also began to act as if he was really scared, but the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that?" "I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now, there may not be any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusks. My weapons have to be ready for use then. If I am not ready, I'll have to suffer." This story tells us that it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last moment. Students, question number 2. Find and label the following in the picture on page number 7. तो बच्चों, अब ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपके पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है, तो हम ये स्किप कर देंगे, यानी इसको कैंसिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3. लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली यूजिंग ओनली वन वर्ड और फ्रेज। प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और मौखिक रूप में आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, एक शब्द में या शब्द समूह में। नंबर 1. One day a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. यह सेंटेंस है। अब प्रश्न है, What was the boar doing? अब इस प्रश्न का उत्तर आपको इस लाइन में ही मिल जाएगा। One day a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. तो जो जंगली सुअर है वह क्या कर रहा था, तो इसका उत्तर आपको उस सेंटेंस में से ढूंढना है। उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस, ही वॉज डूइंग इट केयरफुली। हाउ वॉज ही डूइंग इट? यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द सेंटेंस, ही वॉज डूइंग इट केयरफुली। देयर लिव्ड ए फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। हु लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट? Answer you will get from this sentence, there lived a fox in the same forest. When the fox saw the wild boar, he decided to tease him. अब दो प्रश्न है इसमें। Who saw the wild boar? जंगली सुअर को किसने देखा? What did he decide to do? उसने क्या करने का निश्चय किया? Last question. But the boar did not pay any attention to him. Question is, did the boar pay any attention to him? Question number 4. Match the words or phrases in A and B with reference to the story. A कॉलम में phrases दिए हुए हैं, word और phrases.
बी कॉलम में भी वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं। ए में है लुक फॉर, मेक फन ऑफ, शार्पन, पे अटेंशन टू। बी कॉलम में है टस्क्स, द फॉक्स, ए चांस, अदर एनिमल्स। अब आपको जोड़े मिलाना है ए का बी के साथ। तो पहले का उत्तर हो जाएगा लुक फॉर ए चांस। सेकंड है मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स। थर्ड शार्पन टस्क्स। फोर्थ पे अटेंशन टू द फॉक्स। Question number 5. The following speeches show up the nature of the speaker. Guess the speaker, the wild boar or the fox. अभी यहाँ पर 4 टाइप के स्पीचेस यानी भाषण दिए गए हैं। तो यह जो स्पीच है यह किसके लिए हो सकता है? जंगली सुअर के लिए या लोमड़ी के लिए? पहला है I have invited some friends for a party this evening. I must tidy up the house before 4 PM. मैंने अपने कुछ दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया है आज शाम को, तो मुझे फटाफट 4 बजे के पहले शाम को अपना घर साफ़ करना है। तो यह किसने कहा होगा? तो अभी स्टोरी में आपने देखा ना बच्चों, कौन सा जानवर है जो पहले से अपनी तैयारी करके रख रहा है? द बोर। तो पहले का उत्तर है द बोर। सेकंड, आई हैव टू कैच ए 7 AM ट्रेन टुमारो। आई नीड टू पैक माई बैग टू नाइट। मुझे कल सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़नी है और मैं आज रात को ही अपनी सारी तैयारी करके रख लूँगा। तो फिर ये कौन कह सकता है? ऐसे कौन कर सकता है? द बोर। थर्ड, दीज एंड्स आर सो स्टूपिड ऑल द टाइम दे आर बिजी कलेक्टिंग फूड। यह चींटियाँ कितनी मूर्ख है, दिन भर सारा समय वे अपना भोजन जमा करती हैं। तो ऐसी सोच कौन रख सकता है? द फॉक्स। चौथा, सिस्टर थैंक यू फॉर द लड्डूस, नाउ गिव मी अ हैमर सो दैट आई कैन ब्रेक देम। तो ऐसी सोच स्पीकर कौन हो सकता है? द फॉक्स। पेज नंबर 9, एक्टिविटी 6, लर्न द फॉलोइंग इडियम्स अबाउट एनिमल्स। इडियम्स मतलब मुहावरे होते हैं, जानवरों के मुहावरे हैं। एज स्लाई एज अ फॉक्स, एज क्वाइट एज ए माउस, एज ब्रेव एज ए लायन, एज स्टबन एज अ म्यूल, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एज फ्री एज ए बर्ड, एज बिजी एज ए बी, एज स्लो एज ए स्नेल, एज प्राउड एज ए पीकॉक। यह ईडियम्स आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। एक्टिविटी 7, फाइंड आउट एटलीस्ट 3 suitable objects for the following action words. यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, शार्पन, राइट, डेकोरेट, पेंट, ये सारे शब्द क्या है? क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं के लिए 3 वस्तुओं का नाम लिखना है हर क्रिया के लिए। जैसे शार्पन के लिए उदाहरण दिया है, देखिए शार्पन, सीजर्स, टस्क्स, ए नाइफ, ए पेंसिल, योर माइंड। उसी प्रकार मैं ओरल एक्टिविटी में आपको वॉइस मैसेज द्वारा बताना है कि राइट के लिए 3 ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे, डेकोरेट के लिए, पेंट के लिए, ड्रॉ, प्ले, ओपन, क्लोज, वॉश, पॉलिश, थ्रो, कैच, ब्रेक, पोर, फिल, कट, जॉइन, फाइंड, फोल्ड, मेजर और रिपेयर। इन सब का वॉइस मैसेज द्वारा मैं ओरल एक्टिविटी बच्चों लूँगी आपसे। एक्टिविटी 8, ट्राई टू थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर्स टू द फॉलोइंग वाई क्वेश्चंस। तो अधिकतर जो प्रश्न होते हैं बच्चों WH वाले होते हैं, जैसे वाई, हु, विच, हुम, वेयर, वॉट। तो ये सारे प्रश्न कौन से हैं? किससे शुरू हो रहे? वाई से, यानी क्यों से। पहला है वाई आर यू रीडिंग दिस स्टोरी। एग्जाम्पल दिया है उसके लिए, आई लाइक इट, इट्स इंटरेस्टिंग, आई एम रीडिंग इट बिकॉज इट्स फनी। उसी प्रकार आपको 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th सेंटेंसेस वाई वाले क्वेश्चंस के लिए 3-3 आंसर्स लिखने हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी, उसमें से आप लिख सकते हो।